स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 2012 की एक इंटेंस 2D हार्ट एंड स्वॉर्ड एक्शन पैक सीरीज which not only creates its own vibe of rush, action and emotion but also unlike its plot, storyline and theme हमें इंडिविजुअलिटी, मेमोरीज और स्टेटस डोमिनेंट सोसाइटी जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटीज से भी एक बेहतर नजरिए से वाकिफ कराती है. So here let's do a season wise analysis of all the season aired till this date और देखते हैं कि how this anime makes us experience reality. Season 1 of the anime is typically based on the core theme of anime, the virtual reality. Story starting in 2022 where the first total VR simulation game, the Sword Art Online launch होता है. But as soon as majority players log into the game master locks the game ताकि कोई भी गेम छोड़ के जा ना सके. The two ways of logging out are either passing all the 100 levels or dying in the game. बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर आप गेम पे मरते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आप रियल लाइफ में भी कोमा में चले जाएंगे. Where all the players after knowing the announcement start to rush, हमारा प्रोटैगनिस्ट एंटर करता है with a mission to bring down the game master. अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि स्टोरी के एंड होते होते मैं इस कैरेक्टर का डाई हार्ट फैन बन जाऊंगा. बट वेट, इफ यू थिंक दैट दिस इज द होल स्टोरी, यू आर गॉड डैम रॉन्ग. ये बस स्टोरी का पहला आर्क है which only serves as the base story for the upcoming arcs and season. और यही प्रॉब्लम है एसएओ सीरीज के साथ. ये सीरीज इतने कोर्स, आर्क्स और सीजन में डिवाइडेड है दैट इट मे बी पॉसिबल कि आपको कोई आर्क कुछ ज्यादा ही पसंद आए, वही कोई आर्क आपको डिसअपॉइंट करे. एंड ऑल्सो इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन ऑन वॉच ऑर्डर एंड टोटल नंबर ऑफ एपिसोड. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके स्क्रीन पे अभी वॉच ऑर्डर और एपिसोड लिस्ट फ्लैश हो रही होगी. यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी इट. कमिंग बैक टू द एनालिसिस वेयर द फर्स्ट आर्क ऑफ द सीजन किरीतो को डिफरेंट मेंटालिटीज और सिचुएशन पे जंप कराता है, इवेंचुअली मेकिंग इट अ सोलो नॉन सोशल प्लेयर. और हमें ये समझाता है कि व्हाई अ पर्सन टेंड्स टू बी इन अ ग्रुप और टेंड्स टू बी एन इंडिविजुअल. Second arc of the season introduced new characters and mostly based on deepening the relationship between the protagonist Kirito and Asuna, majorly focusing on light themes like love and romance. अगर सीजन 1 देखने के बाद आपको भी रिलेशनशिप पे जाने का मन करे तो अपनी टूटी फूटी जिंदगी और मर चुकी लाइफ को देख के खुश हो लेना, just like me. With strong character development and top-notch sword action battles, Season 1 ends, giving a kickstart to Season 2, which introduces yet another game, the Gun Game Online, and again some new characters. Now this game is typically a live-action shooting game, but our protagonist Kirito being a swordsman, वो इस गेम पे भी sword को लेके आता है. अब मेरे को भी आप ही की तरह ये कॉन्सेप्ट पोटेंशियल नहीं लगा था until I watched this opening scene. Season 2 along with the movie The Ordinal Scale tries to fill the missing stone of Season 1 और साथ ही साथ एक different view से past stories और characters को show करता है. This season typically makes the characters in the series more closer to the real world, making them strong mentally, yet not giving up the theme like parental pressure, peer support, एंड गिविंग अ डीप मैसेज कि शायद जिंदगी के सबसे अच्छे पल हम अपने सबसे बुरे हालात और सिचुएशंस में बनाते हैं जिनको हम अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ कभी भूलना नहीं चाहते. द सीजन 2 ऑफ द एनिमे एक्सट्रीमली बफ्स ऑल द कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्पेशली द प्रोटैगनिस्ट. अब बात यह है कि सीजन 2 के खत्म होते तक सीरीज इतनी सेंट्रलाइज्ड हो जाती है किरीतो के ऊपर कि सामने चाहे कितना भी सीरियस सीन चल रहा हो, बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये बात रहती है कि whatever happens, किरीतो सबका बाप है. This thing is good, but it also lowers the overall energy of the series. But जैसे ही मैंने सोचा कि सीरीज का एनर्जी लेवल कम हो रहा है, I got this. Third installment in the series, the Alicization, which takes the energy and intensity of the series to a whole new, different, and in my opinion, the ultimate level.
Alicization is the core and heart of this series as well as of this video too. ये सीजन से अचानक ओवर पावर्ड क्रीटो को लाइमलाइट से हटाकर न्यू कैरेक्टर्स और बॉन्ड्स को स्क्रैच से बिल्ड करता है एंड प्रेजेंट्स एन इंटेंस एक्शन पैक प्लॉट। ये सीजन सोसाइटी के रियलिटी दिखाता है कि कैसे एक सोसाइटी स्क्रैच से बनती है और उसमें रूल्स इम्पोज किए जाते हैं विद गुड इंटेंशन, बट जस्ट बिकॉज ऑफ करप्ट माइंड ऑफ वन पर्सन सोसाइटी में इवननेस क्रिएट होती है और कैटेगरी डिवीजन सिस्टम बनता है और कैसे अपर कैटेगरी करप्ट इन सेम रूल्स को मैनिपुलेट करते हैं लोअर कैटेगरी पे डोमिनेट करने के लिए। This type of similar message is presented in mythologies like the Mahabharata and the Iliads, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी डीप आइडियोलॉजी मेरे को एक एनिमे पे देखने को मिलेगी। Also, this season is age restricted because there is several scenes of sexual assault जहां upper category sexually harass करती है lower category को और हमारा main character कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो rules से बंधा हुआ है। इन सीन्स में इंटेंसिटी को इतना हाई रखा जाता है कि आपके अंदर एक अनइजीनेस क्रिएट हो जाती है और आपको मन करता है कि स्क्रीन के अंदर घुस के इस कैरेक्टर को मारे। वाइडली स्पीकिंग सीजन 3 ऑफ दिस एनिमे एक होल हार्ट वार्मिंग एंड इमोशनल स्टोरी प्रोवाइड करता है इंक्लूडिंग वॉर, सैक्रिफाइसेस, फ्रेंडशिप एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ स्वॉर्ड एक्शन। एंड ओवरऑल बात करें तो एसईओ सीरीज जिस हिसाब से अपने कैरेक्टर्स, उनके साइड स्टोरीज और कॉल बैक्स को यूज करती है टू क्रिएट इंटेंसिटी इन एवरी सीन्स की आप बस हर सीन पे डिजॉल्व हो जाए, तो शायद ही अभी तक मेरी देखी हुई कोई और एनिमे कर पाई है। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस एनिमे, और जिसके लिए तुम जैसे बेशरम ये वीडियो देख रहे हो, द गुड न्यूज इज कि ये एनिमे खत्म नहीं हुआ है और इस एनिमे के प्रोड्यूसिंग स्टूडियो ने कंफर्म किया है कि वो इस लाइट नॉवल के सारे कैनन मटेरियल को अडेप्ट करेंगे। But the bad news is that we cannot expect the last season, The United Ring, to air before 2024, क्योंकि अभी एलिसाइजेशन के बाद बस 3 ही वॉल्यूम रिलीज हुए हैं नॉवेल सीरीज के। बट इट इज कंफर्म कि अगले साल 2021 पे देयर विल बी अ प्रीक्वल मूवी द प्रोग्रेसिव विल बी रिलीज टू कवर सम पार्ट्स ऑफ आइनकार्ड आर्क फ्रॉम सीजन 1। Following it, there are also 2 side story volume also published जिन पे प्लान किया जा रहा है कि इन पे several OVAs या मूवी बनाई जाएंगी under the title of the Moon Cradle। Also, it may be possible कि 4 साल के लंबे गैप को फिल करने के लिए या तो इस Moon Cradle को एक सेपरेट सीजन बना दिया जाएगा या फिर जस्ट लाइक द एलिसाइजेशन आर्क द यूनाइटेड रिंग को भी सेपरेट पार्ट्स पे रिलीज किया जाएगा with the break of 12 to 18 months between every part. For now, just hope for the best. SAO is still an intense, crisp and 2D heart anime which defines the reality and emotion in a simple yet impactful way. After all, the only real thing about our society is that it is full of fakes and it is continuously trying to make you a part of itself by harboring negativity around you. Yes, we all have bad times, लेकिन जिंदगी हमें हर पल ही मौका देती है कि हम उस बैड टाइम की कौन सी मेमोरी लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। So don't search reality out there, be real. See you guys in the next video. Until then, peace out.